Assalamu alaikum, dear students. Chapter number 2 and the topic is CR formula 1944. Dear students, we are going to discuss about the introduction of the CR formula and the reasons of the CR formula, and after understanding we will talk about the main points of CR formula. So I have planned 3 short questions here. In first one question, note down the question, write when and who presented CR formula. That means the introduction of the CR formula. And in the next question, write any 4 points of CR formula. Here are the different points are written in the CR formula, as 7 points are written, but we just have to learn only 4 points. The next question is, what were the reasons for CR formula? And after this we will talk about its reasons. So first of all, talk about its introduction. C. Rajagopal Acharya formula, or known in history CR formula or Rajaji formula, was a proposal formulated by Chakravarti Rajagopal Acharya. Why? To solve the political deadlock between the All India Muslim League and Indian National Congress on independence of India from the British. The League's position was that the Muslims and the Hindus India were of two separate nations, and hence the Muslims had the right to their own nation when India obtained independence. So now talk about its reasons. What were the reasons? When the British government crushed the Quit India movement that was launched by the Gandhi forcefully and put Gandhi behind the bars, his movement died out. उनकी मूवमेंट जो उन्होंने शुरू की कि इंडिया छोड़ दो, कौन छोड़ दे इंडिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को यहाँ से छोड़ के चली जाए। लेकिन ये जो उनकी डिमांड थी वो एक्सेप्ट ना हो पाई, उस तरह से काम ना कर पाई, और इसके नतीजे में गांधी को जेल में डाल दिया गया। नाउ गांधी ट्राई टू वीकन द मुस्लिम लीग बाय ट्रैपिंग कायदे आज़म इन अ कॉन्स्पायरेसी। इसका मतलब है कि गांधी ने और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को अपने साथ मिलाकर कायदे आज़म को किसी तरह से एक साजिशी जाल में फंसाने की कोशिश की। यहीं पे CR फॉर्मूला भी डिज़ाइन किया गया। गांधी यूज्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एंड आस्क्ड हिम टू एक्सप्रेस ओपिनियन about the partition of the Chakravarti Rajgopalacharya was the leader. Basically, who was Chakravarti Rajgopalacharya? He was the leader of All India National Congress and he belonged to Madras. This is also a possible short question, that who was Chakravarti Rajgopalacharya? He was the leader of the All India Muslim League and belonged to Madras. He was known in the public as the name of Rajaji. Rajagopal Acharya and Gandhi finalized the formula in March 1944. Now talk about the different points of the CR formula. कि CR formula में किस तरह की कॉन्स्पायरेसी के अंदर कायदे आज़म और मुस्लिम लीग को घेरने की कोशिश की गई। First of all, they said that formula is the basis of an agreement between the Congress and the Muslim League. Gandhi or Quaid-e-Azam will agree it and they will try to prove it from their representative parties or respective parties. इससे मुराद है कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, इस एग्रीमेंट को गांधी और कायदे-आज़म दोनों अपनी अपनी पार्टी से इसको अप्रूव भी कराएंगे। दोनों अपनी अपनी पार्टी से इसको अप्रूव भी कराएंगे। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे that at the end of the war, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, द कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू demarcate the districts having the Muslim population in absolute majority, and those areas plebiscite would be conducted on the basis of all would vote the inhabitants, including the non-Muslims, were adult. That means कि मुसलमान जो हैं, जंग अजीम जब दोम ख़त्म हो जाएगी तो एक मखसूस सा कमीशन कायम किया जाएगा जो हिंदुस्तान के उन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जैसे शुमाल मशरिक़ और शुमाल मगरिब, इनके मिले हुए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
अपनी हदूद का तयन करेगा, जहाँ मुसलमानों की बिल्कुल या कतई अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, वहाँ अलहदा मुमलकतों पर क़याम का फ़ैसला करेंगे और सरहदों में पर रिहाइश पजीर अवाम दोनों में से किसी एक रियासत में शामिल होने का फ़ैसला करेंगे। ये पॉइंट तो था सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए। नाउ talk about the third point. The league was to endorse the India the Indian demand for separate and to cooperate with the Congress in formation of provincial interim government for the transitional period. इस पॉइंट में कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत करती है, यानी किस बात की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी हासिल हो जाए, और वो इस बात से भी इत्तफाक करती है कि वबूरी हुकूमत के क़याम में यानी इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर वर्किंग करेगी, किसी सेपरेट स्टेट की डिमांड ना तो वो करे और ना ही ऐसी कोई बात एक्सेप्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि ऑल पार्टीज वुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टैंड ऑन द पार्टीशन एंड देयर व्यूज बिफोर द प्लेबिसाइट, यानी अगर इस तस्वाब राय का अगर लोगों की राय हाँ या ना में फैसला हुआ तो सियासी जमातों को अवाम के सामने अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने की और उन्हें अपने मौक़िफ़ के हक़ में कायल करने का मौका भी दिया जाएगा। इस पॉइंट से क्या साबित होता है कि कहीं भी कोई रेफरेंडम की सूरत हाल आती है तो वहाँ पे इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटली प्रोपोगेंडा करने की इजाज़त होगी और वो अपनी राय के हक़ में लोगों को कायल करने का टोटल एक फाइनल चांस जो है वो उनको मिलेगा। In the next point, in the event of the separate mutual agreement would be entered into for safeguarding essential matters such as defense, communication and commerce and for other essential services. इस पॉइंट के अंदर कहा गया कि अगर अलहदा मुमलकतों के क़याम का फ़ैसला हुआ तो दोनों फरीक, कौन से फरीक, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, दोनों फरीक अपनी स्टेट और अपनी गवर्नमेंटल इश्यूज़ पर मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। In the sixth point, it said that transfer of population, if any, would be absolutely on voluntary basis. कि अगर आबादी का तबादला होता है यानी माइनॉरिटी एरियाज़ में से लोग जो हैं वो शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द मेजॉरिटी एरियाज़, तो ऐसा करना पॉसिबल होगा सिर्फ रज़ाकाराना बुनियादों पर, यानी वॉलंटरी बेसिस पे ये सब काम हो सकेगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कोई सपोर्ट या कोई ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन नहीं करेंगे। In the last point, the term of binding with the applicable only in case of full transfer or power by British to Government of India. इसमें कहा गया कि फॉर्मूले पर सिर्फ उसी सूरत में अमल होगा अगर हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के हक़ से दस्तबरदार हो जाए और सारे इख्तियारात मकामी लोगों को मुंतकिल कर दें। यानी इस फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि हम उस वक्त अमल करेंगे, उस वक्त साथ देंगे जब बरतानी हुकूमत यानी क्विट इंडिया मूवमेंट पे ही बेसिकली फोकस था कि हम किसी भी सूरत ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब हिंदुस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो इन द लास्ट लाइन वी विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कायद-ए-आज़म। तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग का जो एक सेशन बुलवाया और सबकी कंसल्टेशन के बाद इस CR फॉर्मूले को टोटली मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ जिस पे ख़ास तौर पे फोकस था वो ये थी कि अंग्रेज़ पहले हिंदुस्तान को, सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर चले जाएं, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके साथ मिलकर मुस्लिम लीग काम करेगी। एक इसी तरह से कि जैसे आपको याद होगा हमने जनरल इलेक्शंस में मैनिफेस्टोज़ के बारे में जब बात की थी तो मैनिफेस्टोज़ में कैटेगोरिकली कहा गया था कि मुस्लिम्स वांट अ सेपरेट कंट्री एंड ऑन द अदर हैंड इट वाज टोटली एन एंटायरली डिफरेंट डिमांड बाय द साइड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट दे वुड नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ पार्टीशन स्कीम। सो ये उसी का ही एक फर्दर जो थी ये बात कही गई कि
किसी भी सूरत पार्टीशन के तो मामले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी कही गई कि चले हम मान भी लेंगे, लेकिन इससे सबसे पहले जो डिमांड है हमारी वो यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर यहाँ से चली जाए। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।